Assalamu alaikum and welcome to very first video lecture. I am your maths teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. Let's start our first video lecture. Topics are logarithms, algebraic expressions and algebraic formulas, congruent triangles, line bisectors and angle bisectors. In this lecture you will learn about laws of logarithm and application of laws of logarithm in numerical calculations. Laws of log. First one is log of a into b is equal to log of a plus log of b. It means when values are multiplying and we apply log, then the values will be added with their logs. In the second law, when values are dividing with the log, then values will be subtracted with their logs. In the third law, here we have an exponent. Now exponent will multiply by the log of that value. And the fourth one is Saint-Base formula. Exercise number 3.3, question number 1. Write the following into sum or difference. First part is log of a into b. Values are multiplying here. So by first law of logarithm, values will be added. So the answer is log of a plus log of b. In the second part, we have log of 15.2 divided by 30.5. Values are dividing here. So by second law of logarithm, it will be log of 15.2 minus log of 30.5. Similarly, you will solve third part. In the fourth part, here we have cube root. First of all, you have to change this cube root into exponential form. Then, by third law of logarithm, exponent will multiply by log of 7 by 15. Then, change 7 by 15 into log of 7 minus log of 15 by the second law of logarithm, and 1 by 3 will multiply by log of 7 minus log of 15, and this is the answer. Similarly, you will solve fifth and sixth part. Question number 3. Write the following into the form of a single logarithm. Here we have log of 21 plus log of 5. Now you have to change it into single logarithm. Then here we have the sign of plus. Now you will multiply it. लेकिन जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग जो पढ़ा था उसमें पहले क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था log of a इंटू बी, और आपने इसको जब चेंज किया तो ये हो गया log of a प्लस log of b. अब हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में करना है, तो इट मीन्स हमने चेंज करना है राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल लॉगरिथम में. तो अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ आ जाएगा सिंगल लॉगरिथम. Similarly, we have to solve second part. In the third part, here we have 2. Now it will become exponent and 3 will become exponent of y. Here we have sign of subtraction. So values will be dividing here. Question number 4, calculate the following. In question number 4, you have to use change base formula, which is fourth law. You have to write it log of 2. 2 is the value and 3 is the base, and it will be in denominator as log of 3. Log of 81 and then log of 2. Now log of 2 will cancel by log of 2. In the next step, you have to factorize 81. By the factorization of 81, we get 3 4 times. Now by third law of logarithm, it will be 4 log of 3. Now log of 3 will cancel by log of 3 and we will get 4 as answer. Similarly, you will solve second part. Question number 5. Values of log of 2, log of 3 and log of 5 are given. Now you have to find the following values. First one is log of 32. First of all, you have to factorize it. By the factorization of 32, we will get 2 5 times. Now by third law of logarithm, it will be 5 log of 2. Now put the value of log of 2. By multiplication, we will get the answer 1.5050. In this question, we have to change all the given values in the factors of 2, 3 or 5. Question number 1. Use log tables to find the values of given expressions. Here we have 0.8176 into 13.64. Let x is equal to this expression. Now taking log on both sides, it will be log of x is equal to log of given expression. Then here we have sign of multiplication, and by first law of logarithm, it will be log of 0.8176 plus log of 13.64. Now find the values of log of 0.8176 and log of 13.64 by using calculator or by using your textbook.
It is minus 1.9125 plus 1.1348. Now minus 1 is characteristic and 9125 is mantissa and 1 is characteristic and 0.1348 is mantissa. Now you have to separate characteristics and mantissa in the next step. So it will be minus 1 plus 0.9125 plus 1 plus 0.1348. Now minus 1 plus 1 will be cancelled. Now we have 0.9125 plus 0.1348. So now answer is 1.0473. To find x, take antilog on both sides. Antilog into log of x is equal to antilog into 1.0473. By taking antilog, you will get the answer 11.15. To find antilog, again you have to use calculator or your textbook. Now you are able to apply laws of logs on multiplication, division and exponential form, to apply change base formula, and to apply laws of logs in numerical calculations. Do practice of exercise number 3.3, 3.4 and review exercise. Now pause this video and revise all the points. Chapter number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. In this lecture you will learn algebraic expressions, polynomials, rational expressions, algebraic formulas, surds and rationalization of surds. Algebraic expressions. An expression consisting of one or more terms connected by operations of addition and subtraction. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक हो या एक से ज़्यादा टर्म्स हो जिनको हम कनेक्ट कर देते हैं एडिशन से, एडिशन के साइन के साथ, प्लस के साइन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स में 2x, इट इज़ अ सिंगल टर्म बट इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेकिन वो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इनको तो हम कनेक्ट करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ, तो यहाँ पे इसमें कोई कनेक्शन नहीं है. अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पे 0 प्लस भी हो रहा है और 0 माइनस भी हो रहा है. दैट्स वाई इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. It is also an algebraic expression. Here we have two terms and connecting by the sign of addition. Again, it is an algebraic expression. Polynomials. An algebraic expression in which exponent of the variable is 0 or a positive integer. Polynomials क्या होते हैं? Polynomial is also an algebraic expression. लेकिन इसमें जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट या तो 0 होता है या पॉजिटिव इंटीजर होता है. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स होती हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 एंड अप टू सो ऑन. लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, +1 +2 +3 +4 +5. तो कहा जा रहा है पॉलिनोमियल्स में कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का या तो 0 होगा. अगर 0 होगा तो वो ज़ाहिर है कांस्टेंट टर्म होगी. ठीक है, जैसे 2 3 4 5 ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है. या जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, +1 +2 +3 +4. इनके जो हमारे पास जो भी एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, -1 या -2 -3 ऐसा कुछ नहीं होगा. और अगर एक्सपोनेंट 1/2 या 1/3 कोई रेशनल नंबर आ जाता है तो भी वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा. देन इट विल बी जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. Difference between algebraic expressions and polynomials. Since all of the variables have integer exponents that are positive, this is a polynomial. देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट है 7, here we have 4 एक्सपोनेंट. यहाँ कोई एक्सपोनेंट नहीं है, इट मीन्स कि ये कॉन्स्टेंट टर्म है. या ये कह लें कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 0 है और यहाँ एक्सपोनेंट 1 है. सारे के सारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल. नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज अ टर्म हैज़ अ नेगेटिव एक्सपोनेंट. यहाँ देखिए हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट -2, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर सपोज यहाँ पर 1/2 या 1/3 होता तो भी ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता, पॉलिनोमियल नहीं होता. एक्सरसाइज नंबर 4.1, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म. यहाँ पर है हमारे पास 120x² y³ z5 डिवाइडेड बाई 30x³ yz². सबसे पहले आपने तो 120 को 30 के साथ कैंसिल आउट करना है. 120 30 के साथ कैंसिल आउट हो गया और यहाँ हमारे पास आ गया 4. उसके बाद x³ y z², इन तीनों वैल्यूज़ को आपने
ऊपर ले जाना है न्यूमरेटर में। जब ये ऊपर जाएंगे तो इनके जो एक्सपोनेंट्स के साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे कि एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 पॉजिटिव था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे y +1 है, ऊपर जाके -1, और z +2 है और ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएंगे तो वो जो x वाली वैल्यूज़ हैं, इनके रूल मैथ्स का ही होता है कि जब बेसिस जो है वो सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। या आप ये भी कह लें कि अगर बेसिस सेम है और वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, जैसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, आप ऊपर ना वैसे भी ना लेके जाएं, ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि अगर बेसिस जो है वो हमारे पास सेम है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये डिवाइड हो रही हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 -3 3 -1 5 -2 and you will get the answer 4x - 1 y square and z cube. Similarly, you will solve question number 3, 4 and 5. Question number 5, perform the indicated operations and simplify. यहाँ देखिए हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस, यहाँ एक एक्सप्रेशन है इसमें नेगेटिव का साइन है और ये दोनों हमारे पास हैं रेशनल नंबर्स। इन रेशनल नंबर्स में यहाँ देखें ये है 3y - 2x और ये है 2x - 3y। वी कैन सी डेट द वैल्यूज आर सेम बट द साइंस आर ऑपोजिट। यहाँ 2x के साथ पॉजिटिव साइन है और यहाँ 2x के साथ माइनस है। यहाँ 3y के साथ नेगेटिव है और यहाँ 3y के साथ पॉजिटिव है। पहले इनको अरेंज करते हैं, एक्स वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, -2x + 3y। अब यहाँ पे इनके साइंस को सेम करने के लिए नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। जब नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये आ गया 2x का के साथ माइनस का साइन था, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 3y के साथ प्लस का साइन था और ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो 15 and 4 will be added, so it will be 19/2x - 3y. Similarly, you will solve 6th part. These are square formulas, a plus b whole square, a minus b whole square and a square minus b square. You have to learn these formulas to solve next exercise. Exercise number 4.2, question number 1. A plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6. Then find the value of a square plus b square. इसमें देखिए आपके पास है a square 2 × a square plus b square is equal to a plus b whole square plus a minus b whole square. आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, then put the given values, a plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6. Open the squares, 100 plus 36 is equal to 136. 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. Now you will get the answer of a square plus b square is equal to 68. The second question, values are given of a square plus b square plus c square is equal to 45 and a plus b plus c is equal to -1, and you have to find the value of a b plus b c plus c a. Now you will use this formula, a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया. Now put the given values, a plus b plus c की वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो +1 हो जाएगा. 41 + 2 × ab plus bc plus ca. अब ये 45 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस, नाइट विल बी -44. 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. यू विल गेट द आंसर -22. एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पे हमारे पास सर्ट्स हैं. सर्ट्स क्या होते हैं, आप सिंपली इतना से समझ लें कि सर्ट्स जो हैं ये रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं. कैसे नंबर्स, जिनका अगर आप जो रेडिकल साइन है उसको रिमूव करते हैं, अगर आप जो वो क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी नंबर होगा वो आपके पास डेसिमल नंबर आएगा, कोई भी होल नंबर नहीं आएगा. 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं आएगा, हमेशा डेसिमल नंबर्स होंगे. अभी अंडर 180 है. सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे 90 × 2, फिर इसको मज़ीद 90 का फैक्टराइज किया, 99 × 4 × 5, इस सारे को फैक्टराइज कर लिया. आप डायरेक्टली भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. अंडर 180 को डायरेक्टली फैक्टराइज किया तो यहाँ पे हमारे पास ये है 9. किसका स्क्वायर होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का. और 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा रेडिकल साइन से. 4 है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास 2 रेडिकल साइन से बाहर आ गया और ये √5 एज इट इज़. 3 × 2 = 6 √5. Similarly, you will solve second part and third part and fourth part. In fourth part here we have x6 y7 z8. इसको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे हमारे पास है 5th रूट. तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जितने भी ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं ना
एक्स वाई और जी, इन सब में से पहले 5 एक्सपोनेंट्स जो है ना वो निकाल लेंगे। इनके पहले x6 को x5 लिख लेंगे और एक x रह जाएगा वो साइड पे कर देंगे। y7 है तो y5 यहाँ पे और फिर ये y² रह जाएगा। z8 है z5 और ये बाकी क्या रह जाएगा z3। अब यहाँ जब आपने इसको सॉल्व किया 32 के फैक्टर्स फाइंड किए, 2 आ जाएगा 5 टाइम्स और x y z जिनके ऊपर 5 टाइम्स सबको एक ही ब्रैकेट में कर दिया और बाहर 5 आ जाएगा। बाकी रह गया 3x y² और z3। अब यहाँ से ये जो 5 है ये 5th रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2x y z रेडिकल साइन के बाहर आ जाएगा और 3x y² z3 विल बी विद द 5th रूट। Question number 3, you have to simplify by combining similar terms. And root 5, you have to factorize it. Factorize 20 and 405 will be as it is. Now 9 is perfect square of 3. Now 3 का square root से cancel हो जाएगा और 3 radical sign से बाहर 105 will be as it is. Minus 3 into 4 is perfect square of 2. So it will be here without radical sign and 105 plus 405. Now 3 2 is 6, 105 plus 405. अब यहाँ देखें सबके साथ सेम ही साइड है 105. 105 को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 3 minus 6 plus 4 and after solution we will get 105. Question number 4, you have to simplify. देखिए यहाँ है हमारे पास 3 plus √3 and 3 minus √3. Remind the formula of a plus b into a minus b. It is equal to a square minus b square. So you will use this formula. 3 square is 9 और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 9 minus 3 is equal to 6. सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला, a square plus b square plus 2ab and you will solve it. Similarly you will solve next parts. एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि आपके पास अगर सर्ड आ जाता है तो सर्ड डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में सर्ड है तो आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, अगर मोनोमियल सर्ड है, मोनोमियल सर्ड मीन के जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है तो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड करना है। और अगर बाइनोमियल साइड है, बाइनोमियल साइड वो होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं तो उसमें आपने उसके ऑपोजिट साइन के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। यहाँ हमारे पास मोनोमियल साइड है, √3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, √3 साइड है ना तो इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और 3 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 यहाँ पे देखें 4 √3 इंटू √3 आ रहा है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आ जाएगा 4 इंटू 3, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, सो द आंसर इज 103/4. सिमिलरली यू विल सॉल्व सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट. ना क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 1 plus √2 √5 plus √3 plus 1 minus √2 divided by √5 minus √3. दिस इज फर्स्ट पार्ट. यहाँ आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 105 प्लस 103 और 105 माइनस 103. आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है. इसके नीचे ये वाली टर्म है 105 माइनस 103 नहीं है तो ऊपर न्यूमरेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पर इसके नीचे 105 माइनस 103 105 प्लस 103 नहीं है तो इसके न्यूमरेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल है. आपके पास ये दोनों है ना एक्सप्रेशंस, सेम है वैल्यूज़ लेकिन इनके साइंस ऑपोजिट हैं तो आपने इन वैल्यूज़ को लेना है. ठीक है, यहाँ से लेने के बाद अब ये दोनों ही आपके पास एज ए एलसीएम आ जाएंगी. जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो आपने इस टर्म को इसके न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना. एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट दीज वैल्यूज़. यहाँ देखें 105 प्लस 105 सेम साइंस है, ये ऐड हो जाएंगे. 205 माइनस 103 प्लस 103 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 110 माइनस 110 भी कैंसिल हो जाएंगे और फिर माइनस 106 माइनस माइनस प्लस, सो इट विल में माइनस 106. 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 जब कॉमन आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस 106. अब ये 2 न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएंगे. अब ये नीचे डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में हो रहा है
ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी किस में चेंज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, और उनको माइनस किया तो 2। अब ये न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा √5 माइनस √6। Now you have learned algebraic expressions and formulas, applications of sets and rationalization of sets. Do practice of exercise number 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 and review exercise. Now pause the video and revise all the points. Chapter number 10, congruent triangles. In this chapter you will learn congruent triangles, congruency of triangles, angle side angle postulate, side 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 postulate and hypotenuse side postulate. Angle side angle postulate. In any correspondence of two triangles, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent. This postulate is called angle side angle postulate. कि अगर हम टू ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आप अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या होगा, वो सारी 5 फिंगर्स के साथ 5 फिंगर्स ही मैच होंगी। इसी तरह से अगर आपके पास 2 सेट्स हैं बुक्स की, एक में 5 बुक्स हैं, एक सेट में 4 बुक्स हैं। अब क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में एक सेट में 5 हैं, एक में 4 हैं, तो ये हर बुक के साथ एक बुक मैच नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है देन देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स। इफ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज नॉट सेम देन देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ बात हो रही है कॉरेस्पॉन्डेंस की टू ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल में बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। हम इन जो इसके एलिमेंट्स है इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। अब इस कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है कि अगर एक साइड और कोई से 2 एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के किसी भी एक साइड जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, अगर बेस है तो बेस की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कोई से भी 2 एंगल्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग हो, अगर वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। साइड 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 पोस्टुलेट, इसमें भी ये है कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से करें 2 ट्राइंगल्स की और तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 पोस्टुलेट। हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है। राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं, जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये है कि अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्ग्रुएंट आ जाती है देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। Theorem 10.1, if in any correspondence of two angles and one side of a triangle are congruent to the corresponding 2 angles and one side of the other, the triangles are congruent by angle side angle postulate। इसमें देखिए थ्योरम्स क्या होते हैं। सबसे पहले थ्योरम्स हैं, ये एक थ्योरेटिकल ज्योमेट्री है जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट में आपको गिवन होता है और 2 प्रूव होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं। आपके पास जो आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे, कुछ बातें गिवन होंगी जिनको लेते हुए आपने जो स्टेटमेंट में कहा गया होगा उसको प्रूव करना होगा। यहाँ है हमारे पास 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल है ABC, पता चल रहा है इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल, इनकी 2 ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस की बात हो रही है। एक ट्राइंगल है DEF, इस D डैश को इग्नोर कर दें। यहाँ पर है गिवन इन ट्राइंगल ABC, दिस इज अ साइन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल DEF। कॉरेस्पॉन्डेंस किसकी चेक करें हम, 2 एंगल्स की। कौन से एंगल्स हैं, एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल B, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल F, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F एंड BC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू EF। दिस इज अ साइड। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स बेसिकली उस पर कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब ट्राइंगल के कोई से भी 3 एलिमेंट्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है, कि ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं अगर इनके ये 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इन सेकंड थ्योरम, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स ऑब्जर्व टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमें पता चल रहा है। देखिए जो हमारे पास देन से पहले वाली स्टेटमेंट होती है ना, उसमें हमें गिवन होता है हमारे पास जो भी कि आपके पास ये गिवन है, और देन के बाद जो होता है उसमें यह है कि आपने ये प्रूव करना है। यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके 2 एंगल्स की बात हो रही है और ये 2 एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन ट्राइंगल ABC एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, देन द साइड्स ऑब्जर्व टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट।
अब आपने ये प्रूव करना है कि जो साइड्स हैं, बी के ऑपोजिट साइड है ए सी, एंगल सी की ऑपोजिट साइड है ए बी। आपने प्रूव करना है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है इसको इग्नोर कर दें। नाउ यू हैव लर्न कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स एंड पोस्टुलेट्स ऑफ ट्राइंगल्स। Do practice of review exercise 10 and learn all the definitions of postulates. Now pause the video and revise all the points. Chapter number 12, line bisectors and angle bisectors. In this chapter you will learn line bisectors, angle bisectors and theorems. Theorem 12.1, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट है राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और लाइन बाइसेक्टर के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, और उसके मिड पॉइंट में से पास करती है। तो यहाँ बात हो रही है ये राइट बाइसेक्टर की, तो ये है हमारे पास राइट बाइसेक्टर, ठीक है। अभी आपने प्रूव करना है, आपको कहा गया है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये है लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, आपने प्रूव करना है कि ये लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स होंगे उनसे इक्विडिस्टेंट है। गिवन क्या है? हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक लाइन है एल एम, इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है ए बी, एट पॉइंट सी सच दैट एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, एल एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। राइट बाइसेक्टर की बात हो रही है ना, तो एल एम ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ठीक है, तो एल एम परपेंडिकुलर है, इनके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। इससे पता चल रहा है कि सी जो है वो मिड पॉइंट है, सो इट इज़ अ राइट बाइसेक्टर। प्रूव आपने क्या करना है कि अगर कि यहाँ पर ये जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है पी, तो इसका ए और बी से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू प्रूव दैट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। कंस्ट्रक्शन करते हैं, टेक अ पॉइंट पी ऑन एल एम, एल एम के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, ज्वाइन पी टू द पॉइंट्स ए एंड बी। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हमेशा आपने डॉट्स में रिप्रेजेंट करनी है फिगर में। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस प्रूफ है यहाँ पर, वो जो चैप्टर नंबर 10 के थ्योरम्स है वो आपने वहीं तक करने हैं 2 प्रूफ तक, और ये जो थ्योरम्स हैं ये आपको 8 मार्क्स के आते हैं पेपर्स में। यहाँ पे आप प्रूफ भी करेंगे और प्रूफ में आगे स्टेटमेंट्स और रीजंस भी होंगी। स्टेटमेंट है इन ट्राइंगल ए सी बी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी सी बी। हम कॉरस्पॉन्डिंग्स चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बने हैं, ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल बी सी बी। इसमें ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ठीक है, ए सी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज गिवन, ये हमें यहाँ पे गिवन में ही बता दिया गया है। एंगल ए सी पी, अब ये 3 लेटर्स हैं ना, तो यहाँ पे जो सी मिड वाला लेटर है उस एंगल की बात हो रही है। एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी बी, उनके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये पता चल रहा है कि एंगल सी दोनों में कॉन्ग्रुएंट है। उनके कहा पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। पी सी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। अब ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, क्योंकि 2 एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी 2 साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। नाउ if these triangles are congruent then their corresponding sides are also congruent, so PA is congruent to PB। यही आपने प्रूव करना था। Theorem 12.3, the right bisectors of the sides of a triangle are congruent। वो congruent था, यहाँ पर बात हो रही है congruent की। congruent mean to lie on the same point। अब आपने ये प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं साइड्स के वो congruent हैं। इसमें देखें हमारे पास है एक साइड ए बी, बी सी और ए सी। पहले यहाँ पे देखें ये राइट बाइसेक्टर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर आ गया। गिवन क्या पता चल रहा है, हमारे पास है एक ट्राइंगल ए बी सी। अब ये राइट बाइसेक्टर्स हैं ए बी, बी सी और सी ए के कॉन्ग्रुएंट, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ए बी और बी सी के, ये ए बी का राइट बाइसेक्टर ये है, ये बी सी का राइट बाइसेक्टर आ गया, और दोनों को हमने ज्वाइन किया पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। सी को नहीं ज्वाइन करना, आपने ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। नाउ प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। इन ओ
ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी। यहाँ पे देखें ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी, जैसे भी हमने फर्स्ट थ्योरम किया था उसमें हमने कहा था ईच पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो उसमें हमने ये प्रूव किया था ना पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी। उसी तरह से यहाँ पे फिर ये देखें ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, तो फिर इस पॉइंट का भी इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा। सो ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी, सिमिलरली ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। ठीक है, बाय द फर्स्ट थ्योरम। अब जब ये हमारे पास ये स्टेटमेंट्स आ गए हैं, दिस इज क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, यहाँ पे देखिए अगर ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रेंट है और ओ बी ओ सी के कॉन्ग्रेंट है, देन ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। सो ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। नाउ पॉइंट ओ इज ऑन द, अब अगर ओ ए भी ओ सी के कॉन्ग्रेंट हो गया तो फिर ओ जो है वो तो सी ए के ऊपर भी, फिर सी ए का जो राइट बाइसेक्टर है उसका भी यही पॉइंट होगा। पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। बट हमने तो कहा था कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। हमने तो सिर्फ ए बी और बी सी की बात की थी, लेकिन यहाँ पे तो ये ओ ए और ओ सी के जो राइट बाइसेक्टर होगा उसके भी यहाँ पे कॉन्ग्रेंट आ रहा है, सी ए के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी। सो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए ऑल्सो कॉन्ग्रेंट एट पॉइंट ओ। यही आपने प्रूव करना था। Theorem 12.4, each point on the bisector of an angle is equidistant from its arms। यहाँ देखिए हमारे पास है स्टेटमेंट, हर पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जैसे राइट बाइसेक्टर है ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर में होता है कि ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, आपने ये बताना है कि हर पॉइंट जो भी, कि अगर कोई पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, तो आपने ये प्रूव करना है कि ये इसके इस एंगल के आर्म से, ये इसके आर्म्स हैं, ठीक है, इनसे इक्वी डिस्टेंट है। गिवन क्या है, अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एक्स द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। पी जो है ओ एक्स जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है इसके ऊपर एक पॉइंट है। प्रूफ आपने क्या करना है कि पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर, डेट इज पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, तो पी जो है, पी क्यू और पी आर जो है ये इक्वल हैं। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये कि आपने ये प्रूव करना है कि पी जो है वो ओ ए और ओ बी इनके दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब यहाँ देखिए मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस में। ठीक है, ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ पी दोनों में कॉमन आ रहा है। एंगल पी आर ओ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू ओ, क्योंकि दोनों ही हमने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल है। एंगल आर और एंगल क्यू दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। एंगल ओ इज कॉन्ग्रेंट क्योंकि ये एंगल दोनों में आ रहा है, इट इज़ गिवन। देन ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी ओ आर बाय साइड एंगल पोस्टुलेट, सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी। सो पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर, और यही आपने प्रूव करना था। नाउ यू हैव लर्नड लाइन बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स एंड थ्योरम्स। Do practice of review exercise and learn theorems. Thanks for watching.